Dear students, we are continuing with chapter 9 optics the refraction. आज इसका very important topic है total internal reflection. Total internal reflection ये examination point of view से बहुत ही important है. अक्सर इसमें से question आ ही जाता है, कोई कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है. Now let us suppose that here we have denser medium. Denser medium, and here we have rarer medium. Let us suppose that a ray of light which is normally incident on this, let us say this is point O, from this ray of light comes out. Since it is normally incident on this, it will not get refracted, it will go in straight line, refracted ray in straight line. Let us suppose that another ray of incident light coming from this object is incident between the interface पे incident है at an angle of incidence in denser medium, ठीक, I1, that is greater than 0. यहाँ पर 0 था या greater than 0, I1. The ray of light gets refracted. As the light comes from denser to rarer medium, it will bend away from the normal, ठीक है, having angle of refraction in rarer medium R1. The ray not only gets transmitted or refracted, it also gets partially reflected. कुछ light reflected होती है इसी medium में. Therefore, the light which is coming out of this denser medium into the mirror will have lesser intensity as compared to the original. यानी कम हो जी क्योंकि partially कुछ reflect होता है surface पे. Now, let us suppose that we increase the angle of incidence. अब ये light जो यहाँ से आ रही है object से इस point पे ये I, let us say it is I2 at an incident at an angle I2 such that I2 is greater than I1. Now some of it will get partially reflected, जो internally reflected वो तो मैंने पहले बताया आपको उसी तरह से जहाँ यहाँ पर होता है. Now as the angle of incidence is increased, angle of refraction will also be increased. Why? Because we know that sin I by sin R is equal to constant, or sin I is equal to constant into sin R. So since this is constant, if I is increased, it means R is also increased. So angle of refraction in rarer medium will also increase. That is, it will bend more away from the normal. Let us say ये R2. Now if we increase the further, if we increase angle further, now here it will get partially reflected, internally reflected. Let us say this is I3. Now I3 is greater than I2 is greater than I1. तो हमने इसको बढ़ा दिया. Now a point is reached. जब ये बैंड होके ऐसे बैंड होके एक टाइम आता है कि ये इसको ग्रेज करती है बिटवीन द इंटरफेस जो होती है उस पे ग्रेज करती है, ऐसे चलती है. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर कितना आता है 90 डिग्री. तब इस एंगल 3 को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल. क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल. सो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? An angle of incidence in denser medium for which the angle of refraction for given pair of media is 90 degree is called
critical angle. It is generally denoted as IC suffix or simply C. यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी हर एक मीडियम के लिए अपना क्रिटिकल एंगल होता है। तो क्रिटिकल एंगल वो होता है डेंसर मीडियम में, ठीक। तो I3 यहाँ पर क्या है, I3 इज इक्वल टू IC क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल वो होता है जिसका रेयर डेंसर मीडियम में होता है क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर 90 डिग्री हो रेयर मीडियम में। तो लाइट जो होगी वो ग्रेज करेगी सरफेस को। अच्छा, नाउ दीज आर पार्शियली रिफ्लेक्टेड, partially reflected light. Now, if we increase the angle of incidence in denser medium, which is greater than an angle of incidence I is greater than critical angle. Now, यहाँ पर लाइट को अब बैंड करने का चांस इस मीडियम में नहीं है, तो वो कहाँ ऑटोमेटिकली, देखिए यहाँ पर थी ऐसे आ गई, अब फिर थोड़ी बैंड हो गई, अब ऐसे आ गई, अब कहाँ जाना है, अब इसको ऐसे जाना है, ठीक। सो इट विल बैंड इनटू द सेम मीडियम में वापस होके, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे। यहाँ पर क्या, यहाँ इस पॉइंट पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सीज हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हो जाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हम क्रिटिकल एंगल इंक्रीज करें तो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो, ये नॉर्मल है, तो अब लाइट बाहर नहीं जाएगी क्योंकि इसको मौका नहीं है। सो यहाँ पर क्या, ये एंगल I और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट विल गेट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। सपोज ये मीडियम है तो इट विल गेट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ये एंगल I होगा, ये भी एंगल I होगा। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वैलिड नहीं है, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वैलिड है। चूंकि कोई भी बाहर लाइट नहीं जा रही है, ये क्या होती है, ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड लाइट है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो कुछ बाहर ही नहीं जाती है। जब मैंने कहा इसकी बाहर वाल जो बाहर जाती है रिफ्रैक्ट होकर, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, बिकॉज दीज आर टोटली इंटरनली पार्शियली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। यहाँ टोटली कुछ बाहर नहीं है, सो दिस इज हाईली इंटेंस, यानी इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, बहुत कम लॉस होती है, इवन वी विल से जीरो लॉस ऑफ इंटेंसिटी, सारी एनर्जी यही चली जाती है, ठीक। दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ आप इसका इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे जाता हूं। Now up to this point laws of refraction are valid, so we will get Snell's law valid है, sin I by sin R यहाँ तक valid है। यहाँ पर फिर sin of sin थोड़ा ही अगर आगे जाएं एंगल इंक्रीज होगा, फिर sin I by sin R valid नहीं है, Snell's law valid नहीं है। After this angle of 90 is एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, फिर स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं, क्योंकि स्नेल्स लॉ किसके लिए होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए। यहाँ पर चूंकि रिफ्लेक्शन होती है तो वो सीज हो जाता है। तो एट दिस पॉइंट Snell's law will be sin I, अब I कहाँ है, डेंसर मीडियम में, sin IC, ठीक, डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ है, रेयर मीडियम में, वो किसके बराबर होगा, sin I बस, वो रिफ्रैक्टिव नहीं, वो रेसिप्रोकल, क्योंकि हमने विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम लिया है। दैट विल लेट अस सपोज दिस इज ग्लास एंड दिस इज एयर, ठीक है, A एयर G ग्लास, ठीक है। therefore it will be refractive index of what, air with respect to glass। क्यों, हमारी इंसिडेंट लाइट है ग्लास में, ठीक है ना, इसीलिए ये बनेगा। नाउ sin 90 is equal to 1, therefore sin IC is equal to GN over A, ठीक। Now according to principle of reversibility of light, refractive index of glass with respect to air is equal to 1 by refractive index, यहाँ पर ये Ng, ठीक है, refractive index of glass with respect to air,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू गिलास। यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू गिलास। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 बाय जी एन ए इज इक्वल टू 1 बाय ए एन जी। तो यहां पर दे दो आप इस इक्वेशन में, तो इसके बदले में लिखेंगे ये, तो क्या आएगा, तो यहां पर लिखता हूं मैं साइन आई सी इज इक्वल टू, इसके बदले में क्या लिखेंगे 1 बाय ए एन जी, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम है। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा, यहां पर लिखूंगा मैं साइन ये ए एन जी इज इक्वल टू साइन 1 बाय साइन आई सी। ठीक है, तो ए एन जी को हम सिंपली एन लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे होता है। ठीक, 1 बाय साइन आई सी। ठीक है, या अगर एयर ग्लास नहीं होगा, कुछ और मीडियम होगा, तब यहां हम एयर के बदले में लिखेंगे मीडियम 2। ठीक है, ये हो गया मीडियम 1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा, दिस इज द रिलेशन। नाउ कभी आपको पूछा जाता है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होनी चाहिए। अक्सर बच्चे ये गलत लिखते हैं। तो कंडीशन क्या है, आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले लो। कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर 1, पहला क्या होना चाहिए, लाइट शुड कम फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, यानी लाइट डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम आनी चाहिए। रेयरर टू डेंसर कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, याद रखो। सो पॉइंट 1 क्या है, लाइट शुड come from optically denser medium to rarer medium। दूसरा, angle of incidence in denser medium should be ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल के कुछ लिखते हैं क्रिटिकल एंगल के बराबर, तब रिफ्रैक्शन होते हैं 90 डिग्री, उससे ज्यादा होना चाहिए डेंसर, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, नहीं ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल लिखेंगे, खाली इतना नहीं, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। हाँ, क्रिटिकल एंगल आई सी फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, क्योंकि हर एक पेयर का अपना क्रिटिकल होता है, जैसे एयर और वाटर उसका अपना क्रिटिकल एंगल है, गिलास एंड वाटर उसका अपना क्रिटिकल एंगल है। ठीक, हर एक मटेरियल पेयर का अपना क्रिटिकल एंगल होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक न्यूमेरिकल है छोटी सी, अ ग्लास स्लैब इज इमर्स्ड इन वाटर, फाइंड द क्रिटिकल एंगल एट ग्लास वाटर इंटरफेस गिवन ANG, that is absolute refractive index of glass, because ये है refractive index of glass with respect to air. So absolute refractive index of glass is 1.5 and absolute refractive index of water is 1.33। अब देखिए यहाँ पर अगर ये ग्लास स्लैब है, इसको अगर पानी में इमर्स कर दिया गया है, ठीक, ये स्लैब है, ये वाटर है। अब यहां पर जब वाटर और गिलास की इंटरफेस बनेगी, ठीक, तो क्रिटिकल एंगल कैसे ढूंढेंगे, तो
लाइट कहाँ से आनी चाहिए, गिलास स्लैब से, क्योंकि वो डेंसर मीडियम है। तो उस एंगल पे जो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो, तो हमें क्रिटिकल एंगल बताना है, तो तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी जब यहाँ एंगल IC हो ग्रेटर देन क्रिटिकल, ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बने, ठीक, I जो हो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। हमें यहाँ दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास एंड वाटर। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर नहीं दिया गया है, तो वो हमें पहले ढूंढना है। तो वो कैसे, जब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो मैं लाइट पासेस थ्रू कंपोजिट मीडिया, उसमें हमने किया था कि अगर दो मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो तीसरे विद रेस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम कैसे हम उसको निकालेंगे। तो वो ये था सॉल्यूशन, ANG इंटू GNW इंटू WNA इज इक्वल टू 1। ये हमने किया था, दैट इज refractiveness of glass with respect to water, refractive index of water with respect to glass and refractive index of water with respect to air। ठीक है, ये तो है। अब हमें क्या निकालना, क्या हमें, तो हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए ANG इंटू WNA इज इक्वल टू 1 बाई ये वाला लेंगे इधर GNW, ठीक। अब देखिए बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर हमारे प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अगर हमारे पास 1 and 2 है, वो होगा 1/2n1, ठीक है। ये हमने किया, तो वही प्रिंसिपल यहाँ पर लगा देंगे। ये तो हमें पता है ANG, तो ये किसके, देखो WNA यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, लेकिन हमें क्या दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, वो 1/30, तो इसको 1.33 इसको लिखेंगे हम 1/ANW एज पर दिस, ठीक है। यहाँ पर ये जो है इसको क्या लिखेंगे 1/, सो इट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, नीचे वाटर ऊपर आएगा, वाटर विद रेस्पेक्ट टू गिलास, तो यही तो निकालना है हमें। अब ये तो हमें पता है, ये भी पता है, ठीक, तो दे दो वैल्यू। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं, इसका वैल्यू क्या है 1.5, ठीक है, इसका इंटू 1/, इसका वैल्यू क्या है 1.33, सो ये आएगा 1.33। ये क्या आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। नाउ वी ऑल्सो नो दैट साइन IC is equal to 1/n या ओमेगा दिस, n भी लिखते हैं या वाटर विद रेस्पेक्ट टू गिलास। अब ये किसके बराबर बनेगा, साइन IC, यहाँ पर हमने वैल्यू दिया तो ये उल्टा हो जाएगा, सो 1.33 ऊपर आएगा और 1.5 नीचे आएगा। इट कम्स आउट टू बी 0.8867, ठीक है। तो IC कैसे निकालेंगे, IC विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8867, ठीक है। और यहां पर लिखता हूं, और IC इज इक्वल टू, जब हम साइन इनवर्स निकालेंगे इट कम्स आउट टू बी 62 डिग्रीज 28 मिनट्स, ठीक है। ये इसका एंगल निकला। नेक्स्ट, a source of light located at the corner inside a 3 meter deep pool। ये एक पूल है जिसकी डेप्थ यहां से यहां तक 3 मीटर है, ठीक है। ये पूल ऑफ वाटर है। A source is located at the corner, यहां पर एक सोर्स लोकेटेड है लाइट का, ठीक। Let us denote it by S। If you were standing 4 meter away on the side of the pool, यानी आप साइड ऑफ पूल से कितने मीटर दूर थे, 4 मीटर, ठीक है।
विल द लाइट बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, क्या लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होगी कि नहीं। लेट अस सपोज दैट ये लाइट यहां से इस सोर्स से ऐसे आ रही है, ठीक इस डायरेक्शन में, इज इंसिडेंट अपॉन एट दिस पॉइंट ऑन द इंटरफेस बिटवीन डेंसर एंड रेयर मीडियम। अगर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम लेस देन क्रिटिकल एंगल हो तो ये बाहर होके रिफ्रैक्ट होके ऐसे चली जाएगी। नाउ अब हमें देखना है कि ये एंगल कितना ये बना रही है। अगर ये निकला ग्रेटर देन फॉर दिस पेयर ऑफ मीडियम, ठीक, तो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये एंगल कम निकला उसे तो बाहर चली जाएगी। लेट अस सी। Now this is 4, this is 3, applying Pythagoras theorem. So this is perpendicular, this is base. So hypotenuse square, that is 4 square, and base square plus perpendicular square will be equal to hypotenuse square. क्योंकि अंडर रूट किया तो वो hypotenuse बनेगा ये वाला, let us say OS. और this will be 4 4 is 16 plus 9, that is OS. यानी इस रे की लंबाई हम मापते हैं, that will be 25, so OS will be equal to 5. तो ये जो इसकी लंबाई है कितनी, 5, क्योंकि ये अपोजिट है इसके, ये भी 3 है और ये जो है ये 4 है। थोड़ा सा एग्जैजरेटेड हो गया फिगर, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लेट इट भी ये ऐसे हो तो आपको पता है अब 4 मीटर है ये। तो ये ट्राइंगल अब लेंगे हम OS, लेट अस से बी, OSB। इसमें से हम साइन थीटा निकालेंगे, जरा निकालो साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल यहां पर, यहां लेट अस से दिस इज एंगल I, ठीक है। नाउ परपेंडिकुलर, दैट इज 4 बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 5, दैट विल बी साइन I, ठीक। ये कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू, जरा डिवाइड कीजिए आप, 0.8, ठीक है। अब I किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स 0.8, ये निकलता है एंगल ऑफ I फॉर, दिस विल कम आउट टू बी 53 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 53। अब हमें क्या देखना है, क्या ये एंगल 53 ये जो इस पेयर एयर और वाटर के लिए क्या ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है कि नहीं। अब हमें अभी हमने जो फॉर्मूला की फॉर ग्रेटर क्रिटिकल एंगल, तो वो यहां पर लिखेंगे जरा। अभी हमने किया साइन IC इज इक्वल टू 1/n, है ना, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू गिलास, ऐसे किया था ना। ये गिलास ने, ये सॉरी ये वाटर है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANW, या सिंपली n लिखो इसको, 1.33 फॉर वाटर है। तो साइन IC इज इक्वल टू 1/1.33, दिस कम्स आउट टू बी 49 डिग्री, दिस कम्स आउट टू बी 0.75, ठीक है। तो साइन IC इज इक्वल टू 0.75 और IC विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75, तो वो कितना बनेगा, it comes out to be, IC comes out to be 49 डिग्री। तो इसका मतलब ग्लास, ये वाटर और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए, कितना है 49, लेकिन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 53, सो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन IC, सो रे विल टोटली गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अब दूसरा कहता है, if you were standing directly above the source of light, what is the apparent depth of the source of light, यानी इसकी apparent depth क्या है, आपको पता है। अब देखिए वो कैसे निकालेंगे हम। we know that refractive index n, या यहाँ पर क्या लिखेंगे ANW, ठीक, is real depth RD डिवाइड बाय apparent depth, ठीक है। रियल डेप्थ तो हमें पता है कितना है 3 मीटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है हमें 1.33, रियल डेप्थ कितना है 3 मीटर,
ये कितना है AD, अपैरेंट डेप्थ निकालना है हमें, ठीक। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AD अपैरेंट डेप्थ 3/1.33, ये कितना आएगा, अपैरेंट डेप्थ आता है 2.26, काम तो दिखेगा बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, 2.26 मीटर। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट इसका।